Wait, it's अभी मैंने देखा ना थोड़ा दोस्तों okay humans will come into the overlay you can end it. We are live now. Yes. Oh, already? Yep. Add a title here and a description. Okay. So, these are the books I wanted to show. Hi, welcome everybody. Oh, we already have 10 people here. So, okay. Let me just start with introducing myself. I am Komal and I am a unschooling mom of two self-directed learners, Ada and Kion. Um, I will not use the word unschoolers for my children because I feel it is me as a parent who is unschooling. I am unschooling myself. We come from a set pattern, a society which has certain rules and regulations and ways of life, the way we should live, the way we should behave, what we should aspire, and there are a lot of shoulds. So, I am unschooling myself, I can say this for sure. I never wanted to send my children to school, and this was decided like right when I was in school. I had this thought already that I'm never going to send my children to school if I'll ever have children. So Ada went to school up till third standard. We were in Delhi, and I met somebody who said there's this wonderful school with a wonderful curriculum, and definitely the curriculum was amazing and I liked it. They did not force children to do anything, and there was a lot of learning. I mean, obviously, unschooled kids doesn't mean uneducated or illiterate children. We do certain things, we do many things rather, to help and support our children learn various things. So this is the school which was recommended by somebody to me, and I did send my daughter to school. But then when it came to my son, I put him in nursery because I had a lot of engagements, and it was difficult for me to be a full-time parent. So I sent him to school, and then one day when I went to pick him from the school, I realized that there was something wrong. The school was really flashy. We were paying through our nose to have our children into that school. But then I realized that was just to show the parents, and that the entire pomp and show and stuff it was a film. It was, you just see it from outside. I was not happy with it, and immediately at that minute I decided that no more are my children going to school, and I decided I'm going to suspend all my activities and going to be a full-time mom. And I pulled them out of school. We shifted to Sydney, my husband's native place. This is an amazing place where Rudyard Kipling wrote his legendary book, The Jungle Book. The name sounds, yeah, that's exactly how the place is. It is surrounded by the jungle. There is jungle around, and it was a perfect place for children to, enjoy, climb the trees, understand nature, and when you understand nature, you understand so much.
This is how the journey began, and a lot of books really helped me in understanding the concept, and we started our own learning center, and we do a lot of programs for children and adults to understand the concept of alternative learning. I would like to show some books that helped me and are still helping me understand the entire parenting concept and unlearning. So here are some books that I really recommend. This is Fear. It's by Thich Nhat Hanh. If you get to stay at the monastery or join any of their programs, it will really, you will unlearn and learn a lot that supports you. There is a lot of market there, an entire market which is teaching you things, but not necessarily you need them. But yeah, when you subscribe to an alternative lifestyle, when you say yourself that I am in search of myself, you get a lot of help. So this is another book, Child Rearing. It is by Daniel Greenberg. I highly recommend that you buy this book and read it. Then these are the best books you can read. This is Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg, and this is the workbook by Lucy Liu. Then this Weapons of Mass Instruction. This is also a wonderful book. It's by John Taylor Gatto, who has taught for over 30 years in public schools, and he started his own thing. Just read this. Then this book, it is Education and Peace, another important book in this journey of unschooling, homeschooling. हिंदी भाषी अगर हैं हमारे साथ में मित्र और अभिभावक यदि हिंदी भाषी हैं और वह इस बात को हिंदी में समझना चाहते हैं, तो ये किताब बहुत सुंदर है। सातत्य की अवधारणा, ये बहुत ही सुंदर किताब है, आप इसे ज़रूर पढ़िए और ये आपकी बहुत मदद करेगी। और फिर दिस इज़ अनदर बुक विच इज़ डंपिंग अस डाउन। ये भी एक बहुत ही सुंदर किताब है, जॉन टेलर की किताब है ये। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैं बताना चाहती थी, आपको दिखाना चाहती थी कि इन किताबों को आप ज़रूर पढ़िए। मुझे बहुत मदद मिली है और परेशानियां बहुत सारी जीवन में आती है। अनस्कूल्ड बच्चे हों या होम स्कूल्ड बच्चे हों या स्कूल्ड बच्चे हों, आजकल तो स्कूल भी कई तरह के हैं, राष्ट्रीय राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, IB बोर्ड, ICSE, ICGSE, बहुत तरीके हैं बच्चों को शिक्षित करने के या उनको ज़िंदगी के लिए तैयार करने के। मुझे लगता है कि ऐसे कोई अभिभावक मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। मैं किसी ऐसे कपल को या पेरेंट्स को, सिंगल भी अगर हैं तो नहीं जानती, जो ये कहें कि बच्चों की परवरिश में परेशानियां नहीं आती हैं। मैं तो रेडिकल अनस्कूलर हूँ, खुद अपने आप को अनस्कूल करती हूँ और मेरे जो बच्चे हैं उनकी कोई मेरी तरफ से कोई मैंडेट्स नहीं है कि ये करना है या ऐसा ये पढ़ना है या ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आई हैव रियली सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अ प्रिंसेस। माई डॉटर इज लवली, बट देन सो आर ऑल द डॉटर्स, एंड माई सन he's a nice human being, but he gives me a lot of tough time. So I can't say that parenting is an easy journey for me. It's really difficult. इस वक्त वो कंप्यूटर स्क्रीन के एडिक्शन के दौर में है और मुझे बहुत टफ टाइम हो रहा है। माइंडफुलनेस ने सबसे ज़्यादा मदद की है, मुझे लगता है। 2 महीने पहले तो ऐसा दौर था जब मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो स्क्रीन से अलग नहीं हटना चाहता और हमारी ऐसे कोई उनसे डिमांड्स नहीं है या ऐसे कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हम कहें कि इस समय उठो, इस समय सो।
या ये करो या ये पढ़ो या यहाँ जाओ या ये सीखो, ऐसा कुछ नहीं है. बट स्क्रीन इज वॉट ही ही इज एडिक्टेड इज द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज. बहुत सारे अनस्कूलर्स और होम स्कूलर्स और अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल को जीने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है शब्द से, लेकिन इस वक्त मेरे पास इससे बेहतर कोई शब्द नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन से बिल्कुल हटना नहीं चाहता. 20 आवर्स भी वो स्क्रीन के सामने बैठे रहता है. इज कम्प्लीटली मतलब 2 महीने पहले का मैं बता रही हूँ, ही कम्प्लीटली गेव अप ऑन फूड, स्लीप, कुछ नहीं, बस स्क्रीन. सो वेरी वेरी टफ टाइम इट वॉज फॉर मी. इतने ज़्यादा नॉन इंटरफेयरिंग पेरेंट्स होने के बाद भी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. सो देन मुझे ये समझ में आया कि माइंडफुलनेस इज़ व्हाट आई नीड टू प्रैक्टिस. और फिर आई सब्सक्राइब माई सेल्फ टू माइंडफुलनेस, और मुझे लगता है कि उसी से मेरी मदद हुई है. बच्चे तो मुझे नहीं पता है कि कैसे बनेंगे, हम उन्हें क्या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें कुछ सिखाने की नहीं है, बस उनके साथ रहने की है. तो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है उसमें आप खुद पे ध्यान देते हैं और आप ये देखते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी है, और जब बच्चे आपको कुछ आके कह रहे हैं तो आप उसको कैसे ले रहे हैं, आप कैसे सुन रहे हैं उस बात को. अब वो स्क्रीन कर रहा है मेरा बेटा, तो कर ही रहा है वो स्क्रीन, मैं उसको मना भी नहीं कर रही हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि वो खाना खा ले, कम से कम सो जाए, 8 घंटे नहीं तो 5 घंटे सो जाए, बट सो जाए वो. तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले समय अपने आप को देती हूँ. 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, और आई लाइक टू स्पेंड दैट टाइम विद माई सेल्फ, एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम a parent, I am not the king or the owner of these children, and my responsibility as a parent is to be cool, to be calm, so be in the moment. तो जब वो मुझे आके कुछ कहता है, या मेरी बेटी भी कई बार बच्चे आपको आके कहते हैं बातें, और अगर उन्होंने आपकी कोई लगातार बात नहीं सुनी होती तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है थोड़ी सी, तो फिर आप उस फ्रस्ट्रेशन को पहले निकालते हैं. जैसे 3 दिन से बच्चे ने आपकी कोई बात नहीं सुनी है और फिर वो आके आपसे कुछ कहते, तो पहले आप कहते कल तो मैंने तुमसे कहा था, तुमने तो नहीं सुना. सो ये सारा सस्पेंड हो गया है माइंडफुलनेस की वजह से. तो मैं शांति से बैठती हूँ, और वो जब मुझे आके कुछ कहते हैं तो मैं सिर्फ उस मोमेंट में what they are saying, I try to listen to what they are saying and suspend all the other thoughts which what happened, what did not happen, what they said, what they did not say. So that way it's easier. I don't feel angry or frustrated or agitated, and I'm loving myself like this. ये बेहतर तरीका मुझे खुद के लिए लग रहा है. तो एक्सरसाइज करने से भी बहुत मदद मिलती है. माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है. द काइंड ऑफ फूड दैट यू कंज्यूम. सो एज अ फैमिली वी आर ऑलरेडी अ वीगन फैमिली, एंड नाउ आई एम बिकमिंग अ नेचुरलिस्ट, सो गिविंग अप ऑन कुक्ड फूड, क्योंकि मैंने ये बात को रियलाइज किया है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए हमारे अंदर क्या जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम सही खाना नहीं खाएंगे तो उस बात को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है. मेडिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण है. तो आप जो भी फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, होम स्कूल करना चाहते हैं या अनस्कूल के पैटर्न को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि प्यार, सहजता और एक अच्छी सुहानी फीलिंग बनी रहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में. वो फीलिंग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है. बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं. तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ. मुझे बहुत मदद मिली है उससे. मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं कि आपको बताऊँ कि यही तरीका पेरेंटिंग का सबसे सही है, या ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे गुस्सा कम आता है, मुझे इरिटेशन नहीं होती है, और मुझे बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है. और जब वो कुछ ऐसा करते हैं जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो भी मैं उस बात को बहुत सहजता से लेती हूँ. मुझे लगता है इनकी मर्जी है, ये इनका जीवन है, तो हो सकता है इनको यही ठीक लग रहा हो.
आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, और बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। राम मोहन राय जी ने बहुत सुंदर फूल भेजे हैं। मैं पौधों के साथ में भी बहुत काम करती हूँ और मुझे लगता है कि प्लांट्स टीच यू अ लॉट, दे आर द बेस्ट टीचर्स। क्योंकि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आप कंपोस्टिंग भी करते हैं, पूरे प्रोसेस को लाइफ के और प्लैनेट के साथ में कैसे इंटीग्रेशन है उन सब चीज़ों को समझते हैं। जब आप ऑर्गेनिकली चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर सहिष्णुता बढ़ती है, टॉलरेंट आप ज़्यादा हो जाते हैं, पेशेंट आप ज़्यादा हो जाते हैं। This is a wonderful initiative by Smriti. I know Smriti, I've been knowing her from a long time, but never had the opportunity to meet her in person. October Festival is one of these festivals that we organize for adults to understand alternative ways of life, and Smriti was supposed to join it, but हो नहीं पाया। एंड ये वंडरफुल इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है। सो आपको बहुत अच्छे विचार लोगों के सुनने के लिए मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इंटरेस्टिंग पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो कई अलग तरीके की पेरेंटिंग करते हैं। हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता हर अप्रोच को फॉलो करना। सो हर किसी को अपना ही अप्रोच ढूंढना पड़ता है। फॉर मी इट इज़ इम्पेरेटिव टू ट्रैवल, दैट्स हाउ माई चिल्ड्रन लर्न। वी ट्रैवल अ लॉट, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उसी तरह से बच्चे सीखते हैं हमारे। आई कैन नॉट सजेस्ट दिस कि हर कोई ऐसा कर पाए। सो आपको तो अपना अपना ही तरीका एक चुनना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और मुझे लगता है तरीका कोई भी हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल। ओके, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं शायद बहुत हद तक हिंदी में कह पाई हूँ। Okay, Smriti is asking me, share the incidents that led you to the concept of practice of mindfulness. प्रिया ने यहाँ पे लिखा है, माई बेबी इज 5 years old, समटाइम्स ही लिसन्स टू मी, समटाइम्स नॉट। माई चिल्ड्रन वर नॉट लिसनिंग टू मी एट ऑल। प्रिया, वो कुछ सुन नहीं रहे थे, जबकि हमारे घर में किसी तरह की कोई ना पाबंदी थी, ना ऐसा कोई सेट नियम ही नहीं था हमारे घर में। हम किसी रिलीजन को भी फॉलो नहीं करते हैं, जिसको जो करना है वो कर सकता है। मैं मदर नेचर को बिलीव करती हूँ, मून साइकिल्स को फॉलो करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहूँ कि सुबह उठना है या इस समय सोना है या इतना घंटा टीवी देखना है या मोबाइल फ़ोन रखना है कि नहीं रखना है। ऐसे कुछ था ही नहीं। मेरी बेटी के पास में मोबाइल फ़ोन है जब वो 9 साल की थी। मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मेरे अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेरी बेटी एटलीस्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी मेरे बेटे से, तो उसको मैंने 9 साल की उम्र में ही मोबाइल फ़ोन दिला दिया था। बेटे के लिए अभी वो 9 साल का हो चुका है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसे मोबाइल फ़ोन दिलाऊं, हालांकि लैपटॉप है उसके पास अपना। तो इंसिडेंट्स जिनकी वजह से मैंने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, इतने फ्रीडम और इतने सबके बाद में भी मेरा बेटा सुनने के लिए तैयार ही नहीं था कि स्क्रीन के सिवाय वो और कुछ कर सकता है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, जब हम खेत में होते हैं अपने, या अपने जो ऑल्टरनेटिव हमारा कैटरपिलर्स लैब है, हमारा एक लर्निंग स्टूडियो, वो हमने बच्चों के लिए बनाया कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के तरीके ढूंढ सकें। तो हाँ, जब हम गांव में होते हैं तो फिर बच्चे स्क्रीन से दूर रहते हैं, उस वक्त वो स्क्रीन को नहीं चुनते। लेकिन हमेशा संभव नहीं है कि हम खेत में रह पाएं। मेरे हस्बैंड क्योंकि एक सरकारी
कर्मचारी हैं तो उनके ट्रांसफ़र होता रहता है, तो हमेशा ऐसे जगह पे नहीं होता, कभी दिल्ली में होता है, कभी ऐसे बड़े शहरों में होता है जहाँ पे जंगल की बहुत पास में नहीं होते, तो हम बहुत समय तो ट्रैवलिंग में बिताते हैं, बट कई बार हम शहरों में भी रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हम दिल्ली में फ्लैट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो संभव नहीं है कि उस तरह का वातावरण मिले। तो जब 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 भी हम शहर आते हैं तो मेरा बेटा स्क्रीन के सिवाय कुछ नहीं करता। और एक पॉइंट पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 5 महीने पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो स्क्रीन से हटने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था वो मेरी किसी बात को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने जो तरीका अपनाया वो अनस्कूलिंग का है, रेडिकल अनस्कूलिंग, जहाँ पे हम कुछ कहते ही नहीं हैं। पर मुझे चिंता हो रही थी जब उसने पूरी तरह से खाना और सोना दोनों बंद कर दिया। वो 15 मिनट की नैप लेता था, मेरे ख्याल से 7-8 घंटे लगातार स्क्रीन पे होने के बाद में 15 मिनट की नैप लेता था, फिर उठ के गेम खेलने लगता था। आज भी वो करता है, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया उसने। तो वो जो पल था वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कि मैं क्या कर क्या पा रही हूँ मैं इस पूरी के बारे में। उसकी आंखें ही खराब हो जाएंगी, वो बिल्कुल, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे, और वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं था। कंप्यूटर में गेम खेल रहा है तो टेबल पे भी उसके पास में मैंने खाना रखा, तो वो इतना एग्जॉस्ट है उसके अंदर की, इतना ज्यादा वो स्क्रीन के अंदर इन्वॉल्व है कि वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वो पल जो था वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पल था, और मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हमको लग रहा था कि ये बहुत परेशानी की बात हो चुकी है। हमने कई लोगों से बात की, हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, अनस्कूल्ड बच्चों से बात की, बहुत लोगों से हमने बात की, पर हर किसी का जवाब ये था कि कोई इस लेवल के एडिक्शन तक पहुंचा नहीं है। तो मुझे बहुत डर लग गया था, और उस वक्त फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ करना होगा। कभी कभी बच्चों की बात हमें मान लेनी चाहिए। मेरे बेटे को जानवरों से बहुत लगाव है, और जब से मेरे घर में कुछ जानवर आए हैं वह इतना खुश रहता है, उसके साथ साथ हम लोग भी खुश रहते हैं। बच्चों की मान लेने से हमें बहुत, हाँ ये बात तो सच है कि बच्चों की मान लेने से हमें बहुत खुशी मिलती है, डेफिनेटली। मेरे तो घर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम बच्चों की न माने, हम तो हर ही बात मानते हैं बच्चों की, ऐसी कुछ है ही नहीं। पर इस कदर स्क्रीन के साथ में बच्चा अगर समय बिताए तो डेफिनेटली वो बहुत मेरे लिए डरावना था। हो सकता है कि कई अभिभावक हैं जिनको परेशानी ना हो इस बात से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत स्ट्रेसफुल था। मेरी बेटी के पास में भी उसका अपना लैपटॉप है, वो एक वार्डरोब डिजाइनर बनना चाहती है, तो वो दिन भर पिक्चर्स खींचती है, उसका अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, बट इस कदर का एडिक्शन उसमें मैंने नहीं पाया कि वो सो ना रही हो, खाना ही ना खा रही हो। ये मुश्किल था, टू हैंडल दिस वाज रियली डिफिकल्ट। तो फिर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से मुझे बहुत मदद मिली। अभी ऐसा हो गया कि सुबह 5 बजे जब मैं उठती हूँ तो मेरा बेटा उस वक्त स्क्रीन कर रहा होता है, क्योंकि वो पूरी रात खेल रहा होता है, तो 5 बजे वो उठ के मेरे पास आ जाता है छत में, और वो अपने गेम्स के बारे में बताता है, तो मैं शांति से उसकी बात को सुन लेती हूँ। वो बात मैं सुन पा रही हूँ, अन्यथा तो बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्यों ये इतना कंप्यूटर में खेल रहा है, क्यों ये इतना, मतलब खाना ही नहीं खा रहा, सो ही नहीं रहा। वो बहुत बहुत डरावना था मेरे लिए। तो उस पल में फिर मैंने तय किया कि मुझे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे हर हाल में एक, मतलब एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ज़्यादा है और हमेशा रहेगी। ये रिलेशनशिप जो होता है अभिभावक और बच्चों का, ये इक्वल शायद नहीं होता है, इसमें हमें देना होता है एज अ पेरेंट। मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि उनको दुनिया में हम लेकर आए हैं, और एक पल पे शायद जब वो बड़े हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि नाउ इट इज़ इक्वल, बट जब तक वो छोटे बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हमारी है, न सिर्फ अपने बच्चों की, बल्कि मुझे लगता है कि सभी बच्चों की, दुनिया के सारे बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम सब साइकिल का हिस्सा हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ अपने बच्चों के लिए अच्छा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, और इसीलिए हम ये कैंप्स करते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे वो आते हैं, रुकते हैं,
और कैंप्स के दौरान कोई बच्चा कभी क्योंकि बहुत कुछ होता है, खेत होते हैं, पहाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, नदी होती है, बहुत कुछ होता है जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। घरों में रहकर ये सब करना मुश्किल होता है। ये एक कारण निश्चित है। हमारा पूरा जो समाज है उसकी संरचना जिस तरह से हमने की है वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, वो बच्चों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। तो वो जगह बनाना महत्वपूर्ण है। स्मृति, शेयर अबाउट क्रिएटिंग कम्युनिटी थ्रू इनिशिएटिव्स। So yes, so Caterpillars Lab was one such initiative which we started in Sivni. Sivni एक बहुत छोटी जगह है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर और नागपुर के बीच में, और वहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था कैटरपिलर्स लैब। आइडिया तो अपने बच्चों के लिए ही करने का था ताकि उनको एक इस तरह की स्पेस मिले और उनके दोस्त जो उनके साथ में खेलने आए उनको भी ऐसी एक स्पेस मिले जहाँ पे किसी तरह की रोक टोक ना हो और बहुत सारी चीज़ें हो जिन्हें वो एक्सप्लोर और जिनसे वो लर्न कर सकते हों। और फिर ELC एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग कैंप्स हमारा एक इनिशिएटिव है जो बच्चों के लिए है। यहाँ पे स्कूली बच्चे आते हैं पर फिर वो वापस अपने घर जाते हैं और फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो हमें पूरे समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसे कैंप्स में तो हमेशा मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बड़े बच्चे अलग तरह से सोचते हैं। इनफैक्ट हमारा अक्टूबर फेस्टिवल जो है उसमें हमने सेशन रखा था द आर्ट ऑफ शिटिंग। टॉयलेट्स, वेस्टर्न टॉयलेट्स थे वहाँ पे, लेकिन हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज टॉयलेट्स यूज मत करिए, एक बार जाके देखिए ओपन डेफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है जो कि नेचर फ्रेंडली है। तो लोग गड्ढा खोद के एंड दे डिड दैट, पर फिर वो अपने घर जाके ऐसा करें ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली हमें इस तरह के कम्युनिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। ऐसे जितने ज़्यादा कम्युनिटी होंगे एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारी मदद मिलेगी। माइंडफुलनेस हैज़ मेड एन इम्पैक्ट ऑन मी, डेफिनेटली सुदर्शन जी, mindfulness has made a tremendous impact on me. Now I do not feel angry. मुझे अब गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आता है। बहुत 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 रेयर ओकेजन्स होते हैं जब मेरे ही बॉडी में कुछ चल रहा होता है तो ही इस तरह का होता है। अदरवाइज आई कंप्लीटली डू नॉट फील एंग्री एनी मोर एट ऑल। और ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से चिंता छोड़ दी है मैंने अपने बेटे की, लेकिन हाँ अब मैं उस कदर परेशान नहीं हूँ माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के बाद में जैसा मैं 4-5 महीने पहले थी। Sahab Singh ji is asking, why is this difference between two, though they have been nurtured by you in the same environment? Sahab Singh ji, this is a huge inquiry and a topic of research for myself. Both the children have been nurtured in the same, not the same environment, rather while we were living in Delhi, it was very different. My daughter was nurtured very differently. But she has come out to be more patient and a more connecting human being than right now what my son is. Maybe males have a different kind of genetic and hormonal system where it is, I don't know, I can't say this, but yes, there's a huge difference between both my children, and I don't know why the difference is. Though my son has been brought up more in an outdoor environment, maybe that is why he's more towards outdoor. If in the absence of outdoors he feels better to be connected to the screen, and when there is outdoor, then there is no screen. This I know. Then there is no screen. He's completely in the fields. You can join our camps through our Facebook page, through my number. I am not a very difficult to trace person. आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो easily you'll be able to look for me. ELC camps and in your system, role model. I think Urmila Sampson is one name that I can say that I look up to her. Apart from all these books, I think Urmila is one of the best people that I have met so far in this journey of unschooling.
होम स्कूलिंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि जिस दिन स्कूल थर्ड स्टैंडर्ड की शुरुआती महीना था और जिस दिन बेटी का स्कूल से मतलब तय हुआ कि स्कूल नहीं जाना है, उसके बाद में वो बैग कभी खोला नहीं, तो कोई करिकुलम घर में कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो होम स्कूलिंग तो मैं नहीं कहूँगी. कंप्लीटली अनस्कूलिंग has been my approach, and Urmila Sampson is one person, Ansar Ali ji, who I can name and say that she is one of those people I look up to, and she has whatever my conversation with her has been have been really interesting, helpful. I learnt a lot from her, and I would suggest, if it is possible, then you all please talk to her if she is available. I think she is giving up on meeting people now, but catch hold of her. It is very difficult to get her to answer questions. She generally avoids, but she's one person that surely I can say has been one of the best that I have met and I'd like to learn from. Yes, definitely. I will share my contact information in links. I will share them. Thank you so much for having me here on your wonderful platform, and it's a great initiative. And especially the best thing I like is स्मृति जो बार बार कहती हैं कि हिंदी में कहिए. हिंदी में कहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी 70% से भी अधिक हिंदी भाषी है, और अंग्रेजी में तो बहुत सारी किताबें हैं. जॉन होल्ट की किताबें हैं, समरहिल डॉक्यूमेंट्री बनी है, कई किताबें हैं. एनवीसी का हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में किताबें, बहुत सारी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं अनस्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. हिंदी भाषी लोगों को का इस पे बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अनुभव शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं जो जानना चाहते हैं. बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में वो कहते हैं कि हिंदी में बोलना बहुत महत्वपूर्ण है. तो ये आपका बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है स्मृति, और हिंदी में आप कर रहे हैं और बाकी स्पीकर्स भी हिंदी में बोल रहे हैं. ये बात सबसे सुंदर है मुझे लगता है. Wonderful, this is wonderful, Smriti. So I think I have almost said everything I wanted to say. Ram Mohan ji and Smriti, wow, this is wonderful. You all are putting in great efforts. आप लोग लगातार comments में highlights लिख रहे हैं. बहुत मेहनत का काम है. ये इतना सरल नहीं है इस तरह से लोगों को जोड़ना और फिर उनके अनुभव लेना और शेयर करना दूसरों के साथ में. It's a noble work that you all are doing, both of you. Wonderful, and Solify के बाकी team members. This is beautiful, and I feel the best part of the beauty is it being in Hindi. That is the best part of it. Yes, Non-Violent Communication by Marshall Rosenberg is one of the best books that I've ever read in my life. It's a life-changing book, and Shami Nanda is a friend of mine. I can't say he's my friend, but yes, he's one person that has helped me understand. In fact, he introduced me to NBC. So I think you can connect with Shami of Ahimsa Gram Jaipur. He's the person who introduced NBC to me, and from that day, life has changed for better. Amazing regional. I'll be in for Marwari. I come from Rajasthan. I was born and brought up in Jodhpur. So if there are any sessions that you are looking forward to do in Marwari, then I'm in for it. I can speak Marwari very fluently, and if we have audience who are interested in understanding the concept and want to do in Marwari, then I'm in for it, volunteering. I'll suggest everybody to focus on food, meditation, and giving yourself some time. Like, morning अगर आपका 7 बजे से शुरू होता है, reserve 2 hours before that for yourself. Sit down and talk to yourself and tell yourself what you want to do.
throughout the day. That helps a lot. That really has helped me a lot. I would suggest that to everybody, whatever your time is, 8 o'clock your day begins, go 2 hours before time, wake up, sit with yourself, talk to yourself, meditate, exercise, focus on yourself. That helps a lot. Hi Krishna. Udaipur, Manish Jain from Shikshantar Udaipur, and I'm LSUC के organizers, which is a wonderful sharing society. LSUC, Manish ji is doing a great work, amazing काम है उनका. वो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और वहाँ पे बहुत इस तरह के लोग आते हैं जो अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स को जी रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. तो उदयपुर में ही है आपके लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर कम्युनिटी बनाई है. मैसेज टू द पेरेंट्स एंड हेल्थ सीकर्स. मैसेज टू द पेरेंट्स, बी माइंडफुल, दैट हेल्प्स. पता नहीं है, कहना मुश्किल है कि बच्चे क्या बनेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, क्या चूज करेंगे, लेकिन अगर आप माइंडफुल हैं तो उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं होती. Amazing. This is beautiful. Vidhi is coming on Facebook Live tomorrow. I would request you, suggest you to please bring Manish also for the sharing session. He's one of the names who's practicing this and helping other people. Most importantly, there are a lot of people who are practicing unschooling or homeschooling, but creating a community for such people, it's really tough, and Manish is one of those people who's doing it. So see if it is possible to bring him. Yeah, so my message to the parents is to be mindful. That is the most important thing. To be able to listen to yourself, to give yourself some time before being anybody else, before being anybody, be yourself first. So give yourself those 2 hours before the beginning of your day. They go a long way. And for the health seekers, yes, personally, mindfulness has helped me because my entire diet has changed. I've been vegan from almost 9 years now. But now I am a naturalist, and I've given up on 2 meals. My breakfast and dinner I have given up on cooked food, and only lunch I eat now cooked. Rest 2 meals are raw for me now. Salads, greens, and I grow a lot. I grow organically, so that is the best part of it. I know what's in my food. So yes, it's really important to be healthy. If you're a parent especially, then it is important to be healthy. So I would suggest that focus on your diet. I've read some interesting books. There's this theory by Dr. Adamo, eat right for your type. So it is a blood group theory. I would suggest you to read that. If you want, I can share the links with you, definitely. Eat right for your type is one of the beginners where जहाँ से focus आता है आप पे कि खाना क्या, क्यों, और वो आपको क्या बनाता है. And then definitely raw food is the natural thing. ये तो समाज हमने बनाए, तो सोसाइटी हमने बनाई है. हमने ये सारी चीज़ें, हमने अपने आप को सेक्लूट कर लिया है नेचर से, और हमने मनुष्य ने तय कर लिया कि they are better and they can overcome anything. But nature is the answer. So I think वो बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए food is very important. It keeps you healthy. फूड आपके सिर्फ बॉडी को नरिश नहीं करता, आपके सोल को नरिश करता है, आपके माइंड को नरिश करता है. तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए. सिर्फ मैं कह रही हूँ इसीलिए नहीं, आप इस बात को करके देखिए. सिर्फ 1 हफ्ते करिए. 1 हफ्ते नहीं कर सकते तो सिर्फ 3 दिन करिए. सुबह रॉ खाइए या कुछ मत खाइए. अगर आप रॉ नहीं खा सकते तो कुछ मत खाइए. सुबह ब्रेकफास्ट कंप्लीटली स्किप कर दीजिए और लंच करिए और फिर डिनर करिए. इस तरह से शुरू करिए. फिर सेकेंड डे आप डिनर स्किप कर दीजिए, सिर्फ 1 फुल मील खाइए और शाम को फल खा लीजिए. आप ट्राई करके देखिए. आपके पूरे माइंड और सोल में इतना अंदर तक जाके वो लगता है कि उससे बहुत बहुत मदद मिलेगी. बहुत मदद मिलती है उससे.
मेडिसिन, नो मेडिसिन, हमारे घर में किसी तरह की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ है। शुरू से हम लोग आयुर्वेदिक वाले लोग ही हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ खास मेडिसिन की। मुझे बचपन से म्यूकस फॉर्मेशन होता था बहुत, उसके वजह से मुझे रेस्पिरेटरी कंजेशन होता था। तो मेरे घर में गाय थी और मेरे पेरेंट्स मुझे दूध पिलाते थे। दूध बहुत महत्वपूर्ण था घर में। जब मेरे अपने हाथ में चीजें आई तो मैंने दूध पीना बंद कर दिया और उससे मेरे सारे समस्याओं का समाधान हो गया। मेरे लिए बहुत काम किया ये। और फिर मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अदा का थोड़ा वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन कियोन तो बिल्कुल एक आध दो टीके लगा देते हैं, जो जब बच्चे पैदा ही होते हैं तो वो तो उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन कॉन्शियसली हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया है और कभी दोनों बच्चे कभी ऐसे बीमार नहीं पड़े हैं। जब बीमार पड़ता है कियोन तो बस उसका कारण दूध होता है। और अब तो उसको भी पता है कि दूध पिए लगातार, अगर किसी भी दूध या दूध से बनी चीजों का वो अगर सेवन करता है तो फिर उसको परेशानी होती, कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो दूध ही एक बस दूध हमारे लिए औषधि है कि हम नहीं लेते दूध, मतलब दूध लेने से बीमारी और दूध न लेने से सब कुछ बढ़िया। तो दोनों बच्चे कभी ऐसे, अदा तो कभी बीमार इस तरह से नहीं हुई है। हल्की फुल्की सर्दी जुकाम भी शायद, मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ उसको हुआ हो। वैक्सीन के लिए देर आर विधि आ रही है कल, विधि विल शेयर वैक्सीन्स पे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, तो वो वैक्सीन्स पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगी आपके साथ में। मुझे तो बस पता नहीं क्यों ऐसे शुरू से लगता है कि एलोपैथी मेडिसिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए होती है, उनका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, बल्कि वो शरीर को कमज़ोर करती है, ऐसा मेरा बिलीफ है। तो बस उस वजह से कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया है बच्चों का। बहुत बड़ा विषय है वैक्सीनेशन और बहुत महत्वपूर्ण। आई वुड सजेस्ट कि विधि जी से इस विषय में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन क्यों, कैसे, वो एक बहुत बड़ा। वीगन के बारे में, हाँ वीगन के बारे में मैं ज़रूर जानकारी देना चाहती हूँ। रोशनी कम हो रही है शायद, घर में बहुत उजाला है तो लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लाइट लगा देते हैं थोड़ा सा। सॉरी, ओके, वीगन, यस। सो 9 साल हो गए हैं मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स बंद किए हुए, लेकिन छाछ एक चीज़ थी जो 2 साल पहले तक उस पर रोक नहीं थी। जैसे गर्मी के मौसम में छाछ बहुत पीने का मन था। फिर साधना फॉरेस्ट में बहुत ही सुंदर वो लोग वीगनिज्म पे एक सेशन करे थे, उसको मैंने अटेंड किया था। और पता नहीं मुझे क्या हुआ वहाँ उनकी गौशाला जो है वो बहुत ही सुंदर गौशाला है, इतनी स्वस्थ गाय मैंने कहीं नहीं देखी। इतने प्यार से गायों का जो वो ध्यान रखते हैं और उनकी जो पूरी फिलॉसफी है कि गाय का जो दूध है वो उसके बच्चे के लिए है। ये पूरा जो आइडिया है, मुझे लगता है कि इसने मुझे अंदर तक टच किया और फिर कंप्लीट रूप से वीगनिज्म शुरू हुआ जीवन में। हमने पूरी तरह से दूध के सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। एक और कारण वीगन होने का ये भी है कि जब कियोन मेरा बेटा हुआ था 9 साल पहले, तो उसके चेहरे पे दाने थे, हल्के हल्के दाने आए थे। तो मुझे लग रहा था कि आई एम अ वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट मदर, मैं हर चीज़ उनकी लिखती थी अपने बच्चों की, दोनों की। तो मैंने कहा कि अदा की स्किन तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लीन थी, कियोन के दाने क्यों हैं। हम कई डॉक्टर्स के पास में गए, हम कई मेरे ख्याल से हम मध्य प्रदेश और दिल्ली के अधिकतर डॉक्टर्स से मिले, हम पीडियाट्रिशियन से। वो लोग बस दवाइयाँ लिखते जा रहे थे। और फिर मुझे समझ में आया कि कियोन के होने के 3rd डे और 7th डे मैंने आइसक्रीम खाई थी। तो मैंने मेंशन भी किया कि आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है जो मेरे बॉडी में गया है, क्या उसकी वजह से दाने हो सकते हैं। दाने के बाद लूज मोशन भी बहुत हुए और कियोन का बहुत रोता था सुबह 5 बजे उठ के। पर
पर भारत में तो ऐसी मदद नहीं मिल पाई, पर विदेश के कुछ और ग्रुप्स से मैं जुड़ी थी तो उन्होंने कहा कि डेयरी कुड बी वन ऑफ द रीजंस, और फिर पता चला कि वही एक मेजर रीजन था। तो तब से फिर मिल्क पूरी तरह से बंद हुआ। और रियल फुल फ्लेजेड वीगनिज्म तो पिछले 2 साल से ही शुरू हुआ है, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही किसी भी तरह का दूध से बना प्रोडक्ट यूज नहीं करते। डेयरी फ्री लाइफ 9 साल से है, बट रियल फुल फ्लेजेड लाइक स्ट्रिक्ट वीगनिज्म 2 साल से ही शुरू हुआ है। और बच्चे, अदा तो इतनी सुंदर बच्ची है कि उसने खुद ही वीगनिज्म अडॉप्ट कर लिया, और वो एक रेडिकल वीगन है। वो 12 साल की है, और वो दाल में घी से बघार लगता था, तो उसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी तरह से किसी भी तरह से मिल्क को यूज नहीं कर सकती हूँ। तो दाल बघारना बंद कर दिया हमने। और अब अदा वो खुद अपने रेसिपीज बनाती है। वो बहुत सारे खाना अब खुद से बनाती है, वीगन डिशेस बनाती है, वीगन बेकरी का बहुत शौक है उसको, तो बहुत वीगन फूड बेक करती है। मुझसे बेहतर शायद वीगनिज्म पे अदा बात कर सकती है, क्योंकि वो एक बहुत ही हार्डकोर वीगन है और इस आइडिया को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहती है, वीगनिज्म के आइडिया को। और बहुत सारी रेसिपीज है उसके पास में, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि वीगन होना बहुत कठिन है, चीजें नहीं मिलती है। हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ पे यदि आप दूध नहीं पिला रहे अपने बच्चों को तो फिर आप क्रिमिनल है एक तरह से। मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए तो क्रिमिनल एक्ट है, मैं अगर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही हूँ तो। लेकिन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है, और अदा तो पूरी तरह से ही, हम सभी वीगन है, बट अदा ज्यादा वीगन है, क्योंकि वो हम लोग कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो बहुत ऑफेंसिव उनको ना लगे तो हम खा लेते हैं खाना की, ठीक है, इट्स ओके। पर अदा नहीं करती है, वो खुद से बनाने लगी है खाना। ये एक अचीवमेंट मानती हूँ मैं अपनी पेरेंटिंग में, कि मेरी बेटी अपनी कम्युनिटी बना पा रही है, अपने लोगों को ढूंढ पा रही है, जो जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहती उनके प्रति बहुत कमिटेड है, और कोई बनाए या ना बनाए वो खुद ही अपने पसंद से वीगन खाना बना लेती है। ओह, इस पे तो कितनी बात हो सकती है, शहर में किस तरह से प्राकृतिक रहन सहन प्रैक्टिस करें। I would really request everybody here to start your own compost bin at home. Please, आप अपना कंपोस्टिंग स्टार्ट करिए। जितना भी किचन का जो स्क्रैप होता है, जो किचन से एक्स्ट्रा जो निकल जाते हैं छिलके और हम उनको फेंकते हैं, वो लैंडफिल्स में जाता है और वो पूरी तरह से वेस्ट होता है वहाँ पे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि मेरी बात शायद कुछ सुनने लायक है, तो प्लीज़ अपने घर में कंपोस्टिंग करिए। बहुत सरल प्रक्रिया है। ग्रीन अफेयर करके फेसबुक पेज है हमारा, उस पर मैंने अपलोड किए हैं, लाइव वीडियोस हम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी है, सपोर्ट करते हैं हम कि कैसे आप कंपोस्टिंग अपने घर में कर सकते हैं। प्लीज़ करिए। और घर में सब्जी उगाना बहुत सरल है। कितनी भी स्पेस आपके पास में, बालकनी है तो आप वहाँ भी उगा सकते हैं, विंडो सिल में भी। ज़रूरी नहीं कि हम सारी सब्जियां ऑर्गेनिक खाएं यदि हमारे पास स्पेस नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सब खा सकते हैं, और वो थोड़ा ही सबसे ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। तो कैसे भी आपकी स्पेस है, घर में सब्जी उगाई जा सकती है। आप अपनी सब्जी खुद उगा सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, और सबसे तो महत्वपूर्ण ये है कि कंपोस्ट बनाइए। प्लीज, अगर आपके पास जगह नहीं भी है तो भी कंपोस्ट बनाइए, और आप उसे डाल दीजिए, ले जाके कंपोस्ट डाल दीजिए आप। वो मदर नेचर के लिए एक जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमारा मन करता ही है कि हम वापस कुछ अच्छा करें उनके लिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मदर अर्थ ने हमको अबंडेंटली चीजें दी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य है ये कि हम वापस जॉय से दें। प्रकृति में जाके शायद ही कोई होगा जिसको अच्छा नहीं लगता होगा। लैंडफिल्स में वो पूरा जो किचन का सामान है वो सारा पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। प्लीज आप अपने घर में कंपोस्ट बनाइए, आप उसको अपने उन दोस्तों को दे दीजिए जो घर में सब्जियां उगाते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो कई जगह पौधे लगे होते हैं, वहां ले जाके डाल दीजिए। बहुत बहुत सरल प्रक्रिया है कंपोस्ट बनाने की। आपको
बहुत सरलता से आपके घर की किसी भी स्पेस में कंपोस्ट बन सकता है। आप प्लीज बनाइए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने घर में कम से कम धनिया तो लगाइए, धनिया और कड़ी पत्ता तो जरूर लगाइए आप अपने घर में। बहुत सरलता से आप धनिया और कड़ी पत्ता अपने घर में लगा सकते हैं, पुदीना आप लगा सकते हैं। पर क्योंकि धनिया कड़ी पत्ता हम बहुत इस्तेमाल करते हैं भारतीय कुकिंग में, तो धनिया जरूर अपने घर में लगाइए। और ये बहुत सुंदर मौसम है किसी भी सब्जी को उगाने का। अगर आपके पास में थोड़ी सी भी जगह है, बालकनी है, अगर आपके पास में 5 फीट बाय 4 फीट की भी अगर बालकनी है, तो आप आराम से लौकी, तुरई, खीरा, करेला लगा सकते हैं। आलू, प्याज भी लगाया जा सकता है, कंटेनर में लगाया जा सकता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए यदि आपका अपना घर है। मैं खुद बहुत सारी चीजें मजबूरन प्लास्टिक में मुझे करनी पड़ती है। ये पीछे मेरा पेपरमिंट है, ये हमारी देसी सेंटर फ्रेश च्युइंगम है, समझ लीजिए आप। हम लोग चलते फिरते इसको खाते हैं। तो ये बिल्कुल, जब आप पेपरमिंट जब आप खाते हैं, मिंट से अलग है, पुदीना अलग होता है, तो बहुत आपको मिंटी टेस्ट आता है। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी सीख होगी अपना काम करना, पेड़ों की रक्षा करना और इस पूरे साइकिल का हिस्सा बनना। स्मृति जी, थैंक यू सो मच, आपने बटरफ्लाई पॉन्ड का लिंक शेयर किया। ये हमारा इनिशिएटिव है, इसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे दिस इज फॉर वुमेन ओनली, जहाँ पे हम सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं। और ये हमारा फीलिंग्स ग्रुप है। वी डोंट शेयर एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू आवर फीलिंग। तो अगर आपको कभी वेंट करना है, परेशान है, आप इरिटेटेड हैं और आपको एडवाइस नहीं चाहिए, सजेशन नहीं चाहिए, जस्ट वांट टू से, देन बटरफ्लाई पॉन्ड इज वन प्लेस जहाँ पे आप आके कह सकते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं। वुमेन ओनली, दिस इज ओनली फॉर वुमेन। How living with nature is related? Oh, living with nature is very much related with education. मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा जो है वो आपको पैसे कमाने के लिए जरूर मदद कर सकती है, लेकिन खुशी आपको नहीं मिल सकती। खुशी तो आपको नेचर में जाके ही मिलती है। शायद ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती जो ये कह दे कि पहाड़ों में जाके उनको अच्छा न लग रहा हो, जो ये कह दे कि नदी के किनारे बैठना अच्छा न लग रहा हो। तो नेचर के साथ में हमारा कनेक्शन है, हम साइकिल का हिस्सा है। ये जो पूरा साइकिल है, पैदा होना और फिर जीना और फिर मर जाना, इसका हम हिस्सा हैं। तो शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा तो एक मद है शिक्षा का। जीवन में कई तरह से हम कई चीजों को सीखते हैं और फिर वो हम अप्लाई करते हैं, जीवन को जीने में सरलता होती है। जो भी लर्निंग है हमारी जीवन की सहूलियत के लिए है। नेचर जो है वो बड़ा पार्ट है, वो हम खुद हैं। तो अपने बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम कौन हैं, हम कैसे बनते हैं, हमारा खाना कहाँ से आता है, कौन सा खाना खाने से कैसे विचार हमारे अंदर आते हैं। हेल्थ, मोटा या पतला कोई व्यक्ति हो सकता है, हेल्दी होना बहुत अलग है। तो जो नेचर है वो हम हैं, तो उसकी शिक्षा हमारे पास में नहीं है। हमने जो पढ़ाई की है, मेरी जनरेशन तक या अभी भी बहुत सारे लोग जो स्कूली शिक्षा जीवन का एक मद है, पर वह जीवन नहीं है। तो नेचर आपको बताता है कि आप कौन हो और आप कैसे रह रहे हो और आपको कैसे रहना चाहिए। तो हम लोग बहुत चींटियों को मशक देते हैं, कीड़े होते हैं इस मौसम में, बारिश के मौसम में निकल के आते हैं, हम उनको मार देते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, वो हमको इरिटेशन होती है, क्योंकि हमने उनके साथ में हमारा जो संबंध है वो तो सीखा नहीं है। स्कूली शिक्षा ने हमको ये बताया नहीं है। बायोलॉजी की पढ़ाई में हमने ये पढ़ा है कि इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और उनका रिप्रोडक्शन ऐसे होता है और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, हम उनका हिस्सा हैं और वो हमारा हिस्सा है। मदर अर्थ को 400 साल लगते हैं कंपोस्ट बनाने में, जिससे कि खाना तैयार होता है। पूरी दुनिया की, विश्व की, पृथ्वी की जो जमीन है, सिर्फ 2.5%, 2.5% जमीन है जो खाना बनाने के लिए रेडी है। अदरवाइज ग्लेशियर्स हैं, डेजर्ट हैं, बैरन लैंड्स हैं। खाना बनाने के लिए इतनी है, तो इतना प्रयास लगता है, हम उस सब का हिस्सा हैं। नेचर को समझना बहुत बहुत
बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि उससे आप पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन खुशी आपको मिलेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो यदि आप खुशी की तलाश कर रहे हैं जीवन में, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ब्लिस और जॉय, हैप्पीनेस अलग है, जॉय अलग है, अचीवमेंट और कंटेंट अलग है, और ब्लिस की फीलिंग अलग है, वो नेचर से मिलती है। जब हम पहाड़ों में जाके बैठते हैं, बहुत 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 ब्लिस की फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपको नेचर से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचर के साथ में कनेक्ट हों, और उस कनेक्शन के लिए आप अपने घर में प्लीज 2 ही चीजें उगा लीजिए, जरूर उगाइए, और कंपोस्टिंग जरूर करिए, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। और बच्चों को कुछ मत सिखाइए, वो सब अपने आप सीख जाएंगे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और स्मृति जी और राम मोहन राय जी, मनीष जैन जी, शमी, ऐसे बहुत साधना फॉरेस्ट, ऑरोविल, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो इस तरह के कम्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। हमारा भी छोटा सा कम्युनिटी है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पेसेस हैं, जाइए, लोगों से मिलिए, बड़ा मज़ा आता है। और आई थिंक दैट्स इट, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन। अगर मैंने आपकी किसी फीलिंग को हर्ट किया हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैंने ज़्यादा बोला हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसे लय बनती चली गई और मैं भी बोलते चले गई। So, Smriti ji, should we end the session now? Thank you. I could bring that feeling, and if you need any kind of support from me, I'm there for you. And my children are also, I mean, they'll be open to sharing their own experiences definitely anytime. Thank you so much. Thank you all for joining me and being very patientful and listening to me. And I wish you all the best in your journey of mindful parenting and unschooling or homeschooling, whatever approach you are choosing. Thanks a lot. Thank you.